Hello and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, listeners, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And listeners who will be calling us from outside Delhi will need to prefix the Delhi STD code 011 before these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के कार्यक्रम में देंगे आपको ताजा आर्थिक समाचार। आज सोमवार है, कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए इन नंबरों पर आप हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। प्रश्नों के जवाब देने और चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ हरवीर सिंह। हरवीर सिंह जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत। जी नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Vishal. Prime Minister Narendra Modi launches e-Rupee, a cashless and contactless instrument for digital payment. Domestic stocks gain more than 0.5% amid positive global cues. Sensex closes above 52,900. Nifty finishes near 15,900 level. And Brent crude price declined to trade below $75 per barrel mark. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकदी रहित और संपर्क मुक्त डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत की। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में 0.5% से अधिक की तेजी। सेंसेक्स 52,900 के ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 15,900 के स्तर के नजदीक पहुंचा और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम गिरकर $75 प्रति बैरल से नीचे। Prime Minister Narendra Modi today launched e-Rupee, a cashless and contactless instrument for digital payment through video conferencing. E-Rupee, a person and purpose-specific digital payment solution, is a QR code or SMS string-based e-voucher which is delivered to the mobile of the beneficiaries. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the country is giving a new dimension to digital governance and e-Rupee will play a great role in strengthening direct benefit transfer or DBT. He said e-Rupee voucher will help everyone in targeted, transparent and leakage-free delivery. Mr. Modi said the centre is taking over 300 government schemes to the poor through DBT. आज केंद्र सरकार 300 से ज्यादा योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। लगभग 90 करोड़ देशवासियों को इसके तहत किसी न किसी रूप में लाभ हो रहा है। राशन हो, एलपीजी गैस हो, इलाज हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, मजदूरी हो, घर बनाने के लिए मदद हो, ऐसे अनेक लाभ डीबीटी से मिल रहे हैं। The Prime Minister said e-Rupee is a futuristic reform that is being initiated at the time when the country is to celebrate Bharat Ki Azadi Ka Amrit Mahotsav. He said e-Rupee vouchers are purpose-specific and will ensure that the benefits of the voucher are availed for the service it is meant for. Mr. Modi said if any organization wants to help people in their treatment or education or for any other purpose, then they will be able to give e-Rupee instead of cash. इसे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई-रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाएं। अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीदी जाए। अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आए। गर्भवती महिलाओं के लिए दिए गए कैश से सिर्फ पोषक आहार ही खरीदा जा सके, यानी पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तेमाल चाहते हैं ई-रूपी वाउचर उसे सिद्ध करेगा। Mr. Singh, the e-Rupee, there are two main points in this. It is a cashless instrument, which means that it eliminates the use, the requirement of a middleman, and it is
contactless, which means in this scenario right now when there is a pandemic, so it's a big step in the, to pass on the beneficiaries, especially to the people who need it and who are sometimes duped by middlemen. Actually, you see, this e-rupee concept is one step ahead of direct benefit transfer. As Prime Minister also mentioned, that whatever is the objective of the support or government is giving, it must be used only for that objective. That is the most important factor. In case of direct benefit transfer or subsidy is going to the beneficiary, sometimes he use that money for the different purposes. Like we have seen in a big way in Kisan Credit Card. Farmers are not using that entire credit for buying input for the crops. They must be using for other purposes also. In this case, whatever the benefit government wants to make to reach to the beneficiary, he has to avail only that benefit through that. So basically, it is more targeted effort to get a better result for the objective for which money is being spent. जी, तो यानी कि जिस काम के लिए पैसा भेजा जा रहा है उसी में वो पैसा खर्च होगा। जी, हमारे पहले कॉलर आज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मुंबई से ऋषिकेश कोटले। जी ऋषिकेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद। मेरा सवाल इस मामले इसके बारे में है, ई-रूपी के बारे में ही है। ये जो ई-रूपी है, ये आम जनता जैसे भीम ऐप है या फोन पे, गूगल पे के जैसा यूज कर पाएंगे क्या? एक और इन सभी ऐप्स जो भी है, यानी सब बैंक्स के जो ऐप है, वेरियस ऐप्स, तो उसके लिए एटीएम कार्ड होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली आरबीआई के रूल के अनुसार वो है या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस ई-रूपी के लिए भी ये जरूरी है क्या? इन दोनों सवालों पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। देखिए, ये तो एक क्यूआर कोड की तरह होगा और उसको स्कैन करके अब जो ट्रांसफर है, जो बेसिकली इसमें क्या है कि आपको कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है इसमें, तो आप स्कैन करके वो उसमें जो अमाउंट होगा एग्जैक्टली यू कैन यूज दैट अमाउंट फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पज, और वो स्पेशली उसका सर्विस प्रोवाइडर जो उस गुड्स एंड सर्विसेज के होंगे वही लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसलिए ये इसमें जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो होगा ही होगा, बिकॉज जब हम लोग ये जो ऐप इस्तेमाल करते हैं, जो डिजिटल ट्रांसफर करते हैं, वहां पे भी क्यूआर कोड का इस्तेमाल होता है। सो दिस क्यूआर कोड विल गिव दैट एडवांटेज। तो यानी कि सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस लेने वाले के बीच में सीधा कांटेक्ट होगा अब ये पेमेंट को लेकर। बिल्कुल जी, और यहाँ ये भी बता दें कि जैसे अभी हरवीर जी कह रहे थे कि क्यूआर कोड है और साथ के साथ अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड भी है ये, यानी कि एसएमएस के थ्रू भी आपके पास ये जानकारी पहुंच जाएगी, या जो भी आपकी जो गवर्नमेंट है जो ई वाउचर है वो एसएमएस के जरिए भी आपके पास वो सुविधा पहुंच सकती है। और चलते हैं अब दिल्ली, जहां से हमारे दूसरे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतीश। सतीश जी, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल ये, जैसे अभी आपने ऑडियो क्लिप चलाया था मोदी जी का कि वो बता रहे थे कि भाई अब जो भी बेनिफिट होगा राशन का या कोई भी, तो वो एक वाउचर दे दिया जाएगा कि भाई इससे आप सिर्फ राशन ले सकते हैं या कोई भी सब्सिडी ले सकते हैं। तो क्या जो लोग राशन लेते हैं अब उनको राशन की बजाय एक वाउचर दे दिया जाएगा ई-रूपीज के बाद, जैसा कि भाई अब यहाँ इसको दिखाते आप कहीं से भी राशन ले सकते हो और राशन की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम शुरू होगा? ये बताइएगा। धन्यवाद। नहीं, देखिए ये तो स्टेज नहीं है अभी। हालांकि दुनिया भर में फूड स्टैंप्स यूज होते हैं कि आप कहीं से भी जाकर के वो स्टैंप एक तरीके का, इसी तरीके का एक करेंसी की तरह है वो, और जो आपको बेनिफिट है वो आपको मिलता है, बाकी रेस्ट ऑफ द पेमेंट इफ रिक्वायर्स यू हैव टू मेक। यहाँ पे आप जब आप जाएंगे उसके पास जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको आप ये जो आपके पास एक कोड है या एसएमएस है वो आप शो करेंगे और वो पैसा, वो अमाउंट जो आपके पास है, जो गवर्नमेंट ने आपको दिया है मदद के लिए, वो उसके पास चला जाएगा। तो आपको ये पैसा निकाल के फिर उसको कैश की तरह लेकर के फिर आप उसको पेमेंट करने जाएं तो ये जो बीच का जो प्रोसेस था ये खत्म हो जाएगा और इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा है कि जिस मकसद के लिए आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको दिया गया है, आप उसको डेविएट नहीं करेंगे जी। तो ये एक इसमें एडिशनल एडवांटेज भी मिलेगा।
कोलकाता से अतनु शाह फोन लाइन पर हैं। हेलो। Yes. Good evening. My name is Atanu calling from Kolkata. My question is, rain is not properly disbursed everywhere in our Indian situation, Indian rainy situation. So, if it is create any impact on our coming day, on our senses? Thank you very much. He wants to know whether the monsoon is creating any impact on the Sensex, the way the Sensex is behaving. You see, because there was a shortfall till third week of July in some part of the country, not everywhere. In some areas, it was even excess rainfall was there in western part, and some southern states also had very high rain. But there are some parts of the country like central and western, northwestern India was deficient in rain. But then monsoon has covered up very fast. Now it is normal. The area Kharif crops was also lagging behind, but now it has reached the normal. So it means that Sensex is taking the positive from the monsoon, because monsoon is very important for Indian economy, and because agriculture depends on that, and some other factors are also there, because agriculture is not just crop production. Rural India and agriculture is so huge market for other sectors also, whether it is services or manufacturing sector. So that's why definitely Sensex takes a clue from the monsoon always. And before we take the next call, let me also again repeat the numbers on which our listeners can call us to get their queries answered. The numbers are 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117, and do prefix the Delhi STD code 011 before these numbers. And now we have Mr. Hasmukh Dedia from Mumbai. Mr. Dedia, welcome to the program. Apna sawal पूछें please. गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम. गुड इवनिंग जी. सर, ये जो आज का स्टेप है यूरोपी का, इसकी मार्केट पे क्या असर होगी, स्टॉक मार्केट के ऊपर? मेरा मतलब है स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, क्योंकि कुछ सब्सिडी जो लैप्स हो जाती है, हाथों में नहीं पहुंचती है, वो कम होगा और कुछ बैंकिंग सेक्टर को फायदा हो सकता है इससे. देखिए, इसमें एक चीज तो आप मानिएगा कि ये जो इसका ज्यादा एडवांटेज है वो गवर्नमेंट का अपना जो सब्सिडी रिजीम है उसको एफिशिएंट बनाने का है, और जो यूजर है बेसिकली जो टारगेटेड बेनिफिशियरी है, बिकॉज नाउ गवर्नमेंट गिव सब्सिडी टू द टारगेटेड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. सो टारगेटेड बेनिफिशियरी and the clarity in the objective to use that monetary benefit which is being transferred from the central resources. These are the basic objective of that. Banking, you see, banking, if there is, how banking gets benefit out of these kind of schemes? If money goes to the bank, banks do the transaction, liquidity is there in the bank. So all these things are there, but definitely there will be a, you can say that some money is somewhere. It is not just in vacuum. So some money is being flowing, and it will go directly. It means it is through the banking system only. जी, मुंबई से एक और कॉलर सवाल पूछना चाहते हैं. रत्नाकर जी हैं फोन लाइन पर. हेलो. हेलो, गुड इवनिंग सर. जी, गुड इवनिंग. हाँ, मेरा सवाल है कि अभी ऑलरेडी मार्केट 52,950 हो गए, 52,950. तो ऑलरेडी सभी सेक्टर में इंक्रीज तो है, तो अभी ऐसे कौन से सेक्टर बता सकते हैं कि उसमें अभी भी प्रोग्रेस हो सकता है? देखिए, एक तो हमें ये देखना है कि जो हमारा लॉकडाउन था या पैंडेमिक के चलते जो सेक्टर्स काफी ज्यादा अफेक्टेड थे, वो ग्रेजुअली ओपन अप हो रहे हैं. डिस्पाइट ये बात सही है कि एक थर्ड वेव की बात होती है, कुछ जरा केसेस सर्च कर रहे हैं ग्लोबली भी और हमारे यहाँ भी, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू सी कि कौन से सेक्टर ओपन हो रहे हैं. जैसे अभी आपने देखा कि ज्यादातर जगह ओपन होने से ऑटो सेल्स बढ़ा, जी है ना. तो ये मॉनसून अब नॉर्मल हो गया है, जो पहले थोड़ा सा कुछ चिंता थी. या फिर हमारा जो आईटी सेक्टर दैट इज डूइंग वेरी वेल, बिकॉज ड्यू टू दीज लॉकडाउन्स एंड लेस मूवमेंट ऑफ द पीपल, एंड ये सब जो है उसका एडवांटेज ग्लोबली भी और हमारे यहाँ भी आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा मिला है. परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हैं आईटी सेक्टर का. सो ये सब सेक्टर्स जो इन चीजों से सीधे ताल्लुक रखते हैं, सो उनको एडवांटेज मिलेगा.
And now the next caller is Mr. Mohit from Delhi. Mr. Mohit, welcome to the program. Please ask your question. Good evening. Good evening. अपना सवाल पूछें. मैम, मैं ये जानना चाह रहा था, जिस तरीके से ई-रूपी वाली स्कीम्स प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, तो जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो उनके लिए भी क्या वाउचर जारी किए जाएंगे या उनको कैश के रूप में हम जैसे निकाल लेते थे पहले उसी तरह निकाल सकते हैं? नहीं, देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड पे एक क्रेडिट लिमिट फार्मर को मिलती है और उसमें गवर्नमेंट का एक इंसेंटिव रहता है जो इंटरेस्ट सबवेंशन हम बोलते हैं 3% का, और उसके बाद भी उसमें अगर जो लोग टाइमली पेमेंट करते हैं उनको और ज्यादा इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। तो गवर्नमेंट का ये उसमें रोल रहता है। अब क्योंकि एक सेंटेंस इसमें प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कोई किसान खाद खरीदना चाहता है तो खाद ही खरीद पाएगा, तो मुझे उससे एक इंडिकेशन मिलता है कि आने वाले दिनों में जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो डायरेक्ट सब्सिडी के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के दायरे में आ सकती है, और इसको लेकर के काफी अरसे से प्रोसेस भी चल रहा है, डिस्कशंस भी चल रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर बात भी हो रही है, एक्सपर्टीज और प्रेजेंटेशंस होते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नाउ ये एक स्टेप उसके क्लोज हम लोग जा रहे हैं। जी, और अब आगे बढ़ने से पहले सेंसेक्स पर बात कर लेते हैं। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज 0.5% से अधिक की तेजी आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.69% की वृद्धि से 364 अंक उछलकर 52,951 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 122 अंक के उछाल से 0.77% की बढ़त से 15,885 पर जा पहुंचा। व्यापक बाजार का प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर रहा। मिड कैप इंडेक्स में 1.05% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.07% की तेजी रही। हमारे अगले कॉलर दिल्ली से हैं अरविंद गुप्ता जी। अरविंद जी, कार्यक्रम में स्वागत। जी, मार्केट मित्रन जी को मेरा सादर नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है, जो अभी बजट डेफिसिट रहा है लास्ट क्वार्टर के लिए, उसमें एस्टिमेटेड बजट से काफी कम रहा डेफिसिट। जी जी, गॉट माई पॉइंट? जी हाँ, जी सवाल पूछे। अब उस केस में क्या है, जब बजट डेफिसिट हमारा एस्टिमेटेड से एक्चुअल कम रहा है, तो क्या कारण है कि पेट्रोल प्रोडक्ट को इतना ज्यादा राइज दिया गया है, इतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से गवर्नमेंट में ये इन्फ्लेशन हो रहा है, और अल्टीमेटली सफरर कौन है? मिडिल क्लास ओनली, और खासतौर से वो लोग जिनके पास न जॉब है न काम है। जी, आई थिंक देयर इज अ मोर ग्रीवांस देन क्वेश्चन। देखिए, इसमें क्या है कि एक तो बजट डेफिसिट नहीं है, वी टॉक्स अबाउट टू डेफिसिट्स, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। जी, सो रेवेन्यू डेफिसिट जहां सरकार ने जो टारगेट रखा है बजट में, और फिस्कल डेफिसिट के लिए वो तो पहले ही मान के हम चलते हैं कि हमारी आमदनी से ज्यादा खर्च होगा, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। उसके लिए बोरोविंग्स लेते हैं और नॉन रेवेन्यू रास्तों से हम पैसा जुटाते हैं, जैसे कि स्टेक सेल है या उस तरीके से जो है। और रेवेन्यू डेफिसिट तब माना जाए जब जो हमने टारगेट रखा अगर उससे नीचे हमारा रेवेन्यू, तो दैट इज कॉल्ड द डेफिसिट। और जाहिर सी बात है कि जो अभी का जो सिचुएशन है उसमें गवर्नमेंट नीड मोर रिसोर्सेज, दैट्स व्हाई द टैक्सेस आर हाई। राइट, एंड now we have Mr. A. Rajagopal from Chennai. Welcome to the program, Mr. Rajagopal. Please ask your question. Shall I ask my question, ma'am? Yes, please. Go ahead. Madam, this is regarding MRP of one particular product. I have a feeling that consumers are not given a fair deal by way of MRP. My point is that suppose a product cost is, production cost is, final cost is 100 rupees. On that, what is the percentage which is added to that for fixing up a MRP? He wants to know what is the percentage which is added to the cost of a product to arrive at MRP, the max. No, actually, MRP is maximum retail price. Yeah. And any company, any producer is free to fix the price, because after the cost of production and the taxation, it includes the tax. It is always there that taxes are included on the MRP. And many companies sell their produce below the MRP. MRP is maximum. Right. So it is, if any producer want to sell below that, definitely there is a huge, sometimes there is huge margin.
some products being sold at a very big difference between MRP and actual price they are sold. If I recall, sometime in late 90s, there was a discussion that it should be sown both. So, right. but somehow it was impractical, or so industry also has some reservations. So nobody was able to go. And our government did not do anything on that point. So it is always a debatable point. But when there is a good market competition, so companies are not able to extract undue profit. Right. And before we move forward, let's take a detailed look at the Sensex and the markets. The Sensex and the Nifty today gained more than 0.5%. Both equity indices appreciated amid positive global cues. The BSE Sensex climbed 364 points or 0.69% to close at 52,951. The NSE Nifty surged 122 points or 0.77% to settle at 15,885. In the broader market at BSE, the mid-cap rose 1.05% and the small-cap index jumped 1.07%, performing better than the Sensex. In the Sensex pack, shares of 21 companies gained while 9 fell. Titan was the top gainer as it surged 3.3%, followed by Mahindra & Mahindra, which gained 2%. Reliance climbed 1.8%, Axis Bank rose 1.7%, and TCS added 1.6%. On the other hand, Tata Steel tumbled 1.7% and Bajaj Finserv fell 0.7%. Bajaj Finance slipped 0.5% and NTPC declined 0.3%. In sectoral indices, all 19 sectors climbed. Metal sector was the top gainer as it surged 4.9%, followed by oil and gas, which climbed 1.9%. Energy sector stocks gained 1.7%, while consumer discretionary goods and services, consumer durables and auto sector rose 1.3% each. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,140 companies gained while 1,197 fell. Shares of 165 companies remained unchanged. And now we have our next caller online, Mr. Jitendra from Jaipur. Jitendra जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है. अपना सवाल पूछें. हाँ, नमस्कार जी. नमस्कार. हमारा ये सवाल है कि स्टील और सीमेंट के शेयर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो क्या सिर्फ मार्च और जून के सेल और प्रॉफिट को भी देखना चाहिए या 2-3 साल का लास्ट भी इसको भी देखना चाहिए? पहला प्रश्न ये. दूसरा प्रश्न ये, 19 सेक्टर जो होता है, तो क्या मैं ऐसा 19 सेक्टर में एक लार्ज, एक मिड और एक स्मॉल कैप पकड़ के तीन लेके चलूं? क्या ऐसा ठीक है क्या? देखिए, सीमेंट एंड स्टील का अगर आपने देखा हो पीछे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इस सेक्टर का, क्योंकि एक तो लगातार जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है, स्टील की डिमांड लगातार बनी रही. इवन इनफैक्ट स्टील प्राइसेस में काफी बढ़ोतरी हुई और स्टील सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है फाइनेंशियली. अगर आप देखेंगे रिजल्ट्स ज्यादातर कंपनीज के, ऑलमोस्ट सभी के. सो अब उसके आधार पे आप देख सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो परफॉर्मेंस क्योंकि बहुत ज्यादा बेहतर रहा है वो उसी पेस पे आगे बढ़ेगा. इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज प्राइसेस इंक्रीज सब्सटेंशियली. सीमेंट के मामले में भी ये रहा है, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी सारा इन्वेस्टमेंट चल रहा है. देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स, बट वी हैव टू सी वेदर हाउसिंग सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल और नॉट, बिकॉज दैट इज अनदर सेक्टर जो कंज्यूम करता है इन प्रोडक्ट्स को. अभी हाउसिंग सेक्टर का जहां पर गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वहां थोड़ा अच्छा है, और अदरवाइज सेक्टर इज नॉट डूइंग रीजनेबली वेल. सो यू हैव टू कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन योर माइंड. और ये आपका सही फॉर्मूला है, नथिंग इज रॉन्ग इन इट, बिकॉज आप बहुत महंगे स्टॉक्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आप तीनों चीजें रखें, स्मॉल, मिड एंड लार्ज. बट ये आपको कंपनीज के सेलेक्ट करते वक्त यू हैव टू फाइंड आउट कि वो कंपनीज का एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है. जी, हमारे अभी कई कॉलर फोन लाइन पर हैं, लेकिन उससे पहले हम उनका सवाल लें. नजर डाल लेते हैं रुपए के प्रदर्शन पर. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 7 पैसे की मजबूती के साथ $1 के मुकाबले 74 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ. घरेलू शेयर बाजारों में तेजी और डॉलर में कमजोरी के बीच रुपए में ये मजबूती देखी गई. विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.24% की गिरावट से 91.95 पर कारोबार कर रहा था. रुख करें एशियाई बाजारों का, तो आकर्षक मूल्यों पर खरीदारी के बीच एशियाई शेयर बाजारों में हाल की नरमी के बाद आज कुछ तेजी दिखाई दी.
कंपनियों के अच्छे नतीजे और अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पर प्रगति होने से भी अमेरिकी और एशियाई बाजारों को सहारा मिला। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2% चढ़ा, जापान के निकेई में 1.8% और हांगकांग के हैंगसेंग में 1.1% की बढ़त दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% लाभ में रहा, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.2% के नुकसान के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो अंतर्देशीय कारोबार में यूरोपीय शेयर बाजार भी बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का कैग दोनों 0.7% और जर्मनी का डेक्स 0.1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। और हमारे अब अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से गौरव। गौरव जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत। हेलो। नमस्कार हरवी जी, नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम जी। नमस्कार सर, मेरा सवाल है ये फार्म लॉ क्या इसको आप एक लिबरलाइजेशन मान सकते हैं? हम शहरी लोग तो सोचते हैं लिबरलाइजेशन है, लेकिन ये किसान ऐसा नहीं सोच रहे हैं। कुछ किसान या सारे किसान जो भी है, तो ये क्या लिबरलाइजेशन है? क्योंकि इससे वो किसान कहीं भी कुछ भी बेच सकता है, अपनी मर्जी से बेच सकता है, ना बेचे उसकी मर्जी। और दूसरा, डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज का अपनी एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट आता है और कैसे प्रभाव पड़ता है अगर बहुत तेज हो जाए डॉलर? या देखिए, जो आपका पहला सवाल है उस पे काफी डिबेट हुई है और गवर्नमेंट का अपना उसको लेकर के रुख है कि क्यों फैसला लिया है। ऑलवेज अगर फॉरेन डॉलर जो है वो बेहतर होता है, रुपये उसके मुकाबले थोड़ा कमजोर है, तो उसका एक्सपोर्ट को बेनिफिट मिलता है, बट एट द सेम टाइम इम्पोर्ट के लिए वो थोड़ी दिक्कत का सवाल हो जाता है। And let's take a look at how the commodities performed today. Oil prices today fell around 1.5% on worries over China's economy after a survey showed that growth in factory activity slipped sharply. On the other hand, concerns about a rise in oil output from OPEC producers also dragged oil prices down. In intraday trade, Brent crude was trading around $74.40 per barrel. WTI crude prices were trading around $72.80 per barrel. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें गिरने से आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने में 120 रुपए की गिरावट आई। सोने का अगस्त वायदा भाव 47,725 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी में भी 150 रुपए की नरमी रही। सितंबर अनुबंध के लिए चांदी 67,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ $1,810.50 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। और अब हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं रघु। रघु जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। संक्षिप्त में अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरे पेट्रोलियम प्राइसेस के बारे में एक जानकारी चाहिए मैडम। अभी कई डिस्कशंस में बोला गया कि $75 जो ऑप्टिमम प्राइस है पेट्रोल का, तो रिटेल में ये कितना तक नीचे जा सकता है मैडम? 80 रुपीज या 60 रुपीज या कहाँ तक नीचे जा सकता है जब ये सेटल हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली ये क्रूड का प्राइस है और क्रूड का एक बाई प्रोडक्ट है पेट्रोल, बिकॉज क्रूड से आपका डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, ये सारा। तो इसलिए अभी उस तरीके एक्स रिफाइनरी प्राइस क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी, और श्रीकांत हैं मुंबई से, लेकिन हम उनका सवाल नहीं ले पाएंगे, समय की हमें पास कमी है। श्रीकांत जी, अगले कार्यक्रम में आप जरूर फोन करिएगा, हम आपका सवाल लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हरवीर जी, समय हो रहा है, अब यहीं इजाजत लेनी होगी अपने श्रोताओं से। कार्यक्रम में आप शामिल हुए और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। Prime Minister Narendra Modi launches e-Rupee, a cashless and contactless instrument for digital payment. Domestic stocks gain more than 0.5% amid positive global cues. Sensex closes above 52,900. Nifty finishes near 15,900 level. And Brent crude price declined to trade below $75 per barrel mark. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकदी रहित और संपर्क मुक्त डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत की। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में 0.5% से अधिक की तेजी। सेंसेक्स 52,900 के ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 15,900 के स्तर के नजदीक पहुंचा और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम गिरकर $75 प्रति बैरल से नीचे। And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back at 3 p.m. tomorrow with Money Matters. Do join us then. Till then, namaskar. Namaskar.